ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यार ये कैमरा शैमरा तो ऑन करो यार, क्या हो गया यार? इतना शर्माना क्यों? मुझे अब तक ये समझ नहीं आती। अच्छा जी। बकिया सारे भी यार, ये सिर्फ 3-4 लोगों ने ऑन किया हुआ था कैमरा, सुबह ऑन रखा करो यार। इंशाल्लाह अगला सेमेस्टर जो है वो तो होना ही, नहीं, होपिंग फॉर द बेस्ट कि अगला सेमेस्टर इट माइट बी ऑन कैंपस। तो आई कांट वेट टू सी ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो अपना कैमरा बंद करके बैठते हैं। आई विल स्पेसिफिकली आस्क दो स्टूडेंट्स कि अपना अब अपना कैमरा बंद करो मेरे सामने। सो विल सी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 10 लेक्चर हमारे आज आज हमारा 10वां लेक्चर हमारा पूरा होने जा रहा है। सो वी आर गोइंग टू कवर our 10th lecture today, and in this lecture what we are going to do is, so we are going to solve the PDF, the probability density function using integration, and then we'll compute the mean and median of the PDF using integration, and then we will use the normal approximation. We will try to apply a normal approximation on the binomial distribution, and within that we are going to cover the continuity correction. So that's the agenda for today's class. So आज क्लास में ये हम चीज़ें हम जो हैं वो इनमें हम बारी बारी करके हम एंटर होंगे हम लोग. So in today's class we are going to cover integration as well. So आप में से जो लोग भी integration थोड़ा सा घबराते हैं, so I think this will be the ideal time for all of you to practice integration over the weekend. So so you are given this random function, ठीक है, a function which is cx cube, and it is defined for values from 2 to 4, ठीक है. So we need to define, so what values of c can make, what value c makes this a legitimate probability function, ठीक है. So for that you need to remember two things, ठीक है. एक जो हमने कहा था कि आपका जो probability density function है, it should be greater than or equal to 0, and the second one is कि if you take it sum from negative to positive infinity, it should be 1. So for that, so these are two conditions that we have to remember. Having said that, let's solve this thing now. Hassan, I guess Hassan ने अपना हाथ खड़ा किया. Sir, जी, can you please go back to the previous screen? ये वाली. Yes, sir. Necessary condition, sir. I was wondering that the first point is written that f of x has to be greater than Or equal to 0, yeah. equal to 0. X, we are talking about a particular point, Particular value, yeah. right? Yeah, yes. So in a continuous distribution, if we are talking about a particular point, the probability associated with that point is virtually 0. And okay. So basically what you are, I get your point. So basically what I'm trying to say is this, the probability density function, you are right about that thing. So basically so I'm not saying about any particular point. I'm just saying a probability density function should be greater than or equal to 0 for not any point, but in that interval. So what interval are we talking about? It should be positive. So The probability should interval, not. interval is not mentioned in the statement, sir. The way it is written, it is implying clearly, sir. So basically, that, if you remember, yeah. if you remember in the last class में हमने कुछ functions देखे थे हमने, जिसमें हम density functions की हम बात कर रहे थे. तो Right. I'll try to make an adjustment to that thing. ठीक है, मैं इसका adjustment करके इसमें डाल दूंगा इसके अंदर. लेकिन this is again the same thing. ये तो पुरानी वाली क्लास की हमने चीजें हमने वहां से स्टार्ट की हमने. So I'll make adjustment to that as well. ठीक है. So Right. So what kind of adjustment, if we try to conceive it right now, because
this दो is चीजें something इसमें इसमें आपने सिर्फ दो चीजें आपने सर important आपने इसमें before we move आपने सिर्फ दो further, चीजें no? आपने इसमें दो चीजें आपने इसमें याद रखनी Yeah, है डेंसिटी फंक्शंस को right. बनाते हुए। एक तो यही कि आपका जो सेकंड है बेसिकली दिस सेकंड थिंग है, सो बेसिकली इसमें ना हम दो चीजें हम लाजमी हम इसमें हम देखना चाह रहे हैं, जो कि हम किसी भी फंक्शन में डिस्क्रिप्टिव में हमने दो कंडीशन रखी थी, उसमें भी हम रखे थे। एक तो हमने पीडीएफ के बारे में, ये बात कर रहा है पीडीएफ के बारे में, दिस इज टॉकिंग अबाउट पीडीएफ, ठीक है, एंड विच स्टेट्स दैट प्रोबेबिलिटी शुड नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, इट शुड नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पर फॉर एग्जैक्टली वन पॉइंट के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर द एंटायर फंक्शन, ठीक है, कि हम किसी भी अगर फंक्शन पे किसी भी जगह पे जाते हैं तो इट शुड नेवर बी जीरो। Sir, एंड the सेकंड थिंग इज, entirety, sir, please excuse me. हाँ जी, Entirety of the function, the whole interval is given in the second point, where we talk about the negative infinity to it's a positive CDF, infinity. it's a CDF, so what we are saying is Right. कि So अगर आप इसको डिफाइन it, करते हैं उसके the उसके first ऊपर, point, yeah, अगर आप उसको उसके ऊपर डिफाइन करते हैं पीडीएफ और ये, सो बेसिकली दीज आर टू थिंग्स ना। एक तो पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, पीडीएफ में बताने चाह रहे हैं कि शुड नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, कि आपका पॉइंट्स जो है, जो इंटरवल हम बनाएंगे ये वाला, जो हमारा जैसे इंटरवल था over ये an वाला, interval, over an जी interval, this adjustment, जी, yes, sir. ठीक है। और दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि यानी आपका पीडीएफ जो है, एक वो पीडीएफ के बारे में बात हो रही है, ये एफएक्स है आपका, ये हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ए और बी, ठीक है। तो हमने कहा ये है कि हमारा एफ एक्स जो है इन सारे पॉइंट्स पर, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में हम नीचे नहीं हमने इसको करना हमने इसको, ठीक है, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। और दूसरा हम लोग कह ये रहे हैं कि जो दूसरा ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये हम कह रहे हैं जनाब कैपिटल एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू वन, दिस इज व्हाट आई मीन, ठीक है। Right. अच्छा, अब हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास जो फंक्शन था गाइस वो था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स थ्री, ठीक है। और अब हमें करना ये है कि वी नीड टू डिफाइन दिस वैल्यू, ठीक है, हमें इस वैल्यू का नहीं पता, हमें वैल्यू डिफाइन करनी है, लेकिन हमें साथ ये बता दिया गया है कि हमारा फंक्शन जो है, आवर फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एक्स, 2 raised to power x and 4, हमें ये कह दिया गया हमें, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स थ्री और 2 < और x4। अच्छा, अब हमें एक ये चीज फंक्शन गिवन है और हमें दूसरा ये फंक्शन गिवन है, सो वी विल बी यूजिंग दिस डेफिनेशन, वी विल बी यूजिंग दिस सीडीएफ फॉर हम इस सीडीएफ को यूज करके वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। उसको हम सॉल्व कैसे करें, आप सोचो आपके पास ऐसी कोई फिगर है और उसमें आपके पास यहाँ पे 2 और 4 है। पहले तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, सो प्रीवियसली वी हैड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो हमने सिंपल हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज द फॉर्मूला वाज गिवन टू अस, वी नो कि एरिया इज इक्वल टू 1, और हमने वहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन हियर वी हैव टू सॉल्व फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 में हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे एफ एक्स हमारा क्या है, हमारा एफ एक्स जो है वो है सी एक्स थ्री डी एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, मुझे ये बताओ मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, मैंने व्हाई डिड आई टेक दैट? आदिल? सर क्योंकि हमारा फंक्शन 2 से 4 पर डिफाइंड। एग्जैक्टली एक बात ये है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड इस पॉइंट्स पर है, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी कैसे ले सकते हैं? हमें तो उसी रेंज से पॉइंट लेना है जहाँ हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट हमने यहाँ पे एफ फोर सी एक्स की हमने कर लिया हमने। अब सी तो आपका वैसे यहीं पे आ जाएगा, सी तो आपका यहाँ पे आ गया, पीछे आपका 2 4 x3 डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अब आपने सॉल्व करना है, सी x4 ओवर 4, यहाँ पे आ गया आपका 4 और 2, ठीक है।
और यहाँ पे हम लेके आ गए इक्वल टू 1। सी यहाँ पे आपका आ गया और आपका 4^4 माइनस 2^4 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस C should come out to be 1/60। आदिल, सर इंटीग्रेशन में जो वो सी या वो कोई और वेरिएबल आता है वो वाई इंटरसेप्ट का, वो इसमें हम लोग इग्नोर कर लेंगे। इग्नोर एज इन कि देखो हमारा जो फंक्शन जो डिफाइन हुआ है वो x के ऊपर हुआ है। सी इज अ कांस्टेंट एट दिस टाइम। ठीक है, सी को हमने ऐसा कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है, तो सी तो ऑलरेडी उसमें बाहर निकल जाएगा, नहीं उसमें अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होना है उसके साथ। तो इंटीग्रेशन करनी थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अगर मैं फर्स्ट करूँ, अगर मैं आपको ये दे देता y इज इक्वल टू a ऑफ x, ठीक है, और मैं कहता उसको डिफरेंशिएट को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने क्या करना था, आपने dy/dx करके आपने a ऑलरेडी पहले बाहर कर लेना था आपने, और आपने dx/dx करना था। तो सेम गोस फॉर इंटीग्रेशन एज वेल। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन की अब अगर आपको दिखाऊं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो ये कुछ ऐसे बन रही है। नाउ दिस इज, अगर आप इसको देखो तो इस सवाल में अगर आप नोट करो तो इस सवाल में अगर हमने देखें तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में है 1/60 x³ फॉर 2^x4। उसके अलावा ये 0 है, 0 एल्स पे। Integration is not that difficult, especially when it comes to our questions in continuous probability distributions. ठीक है, अपनी हमारे PDFs में they are very straightforward. So what we're trying to do is we are trying to estimate the probabilities. ठीक है, अभी हमने probability compute नहीं की, अभी हमने फंक्शन पूरा किया पहले हमने। ठीक है, now let's जी राफिल। सर बस एक छोटा सा मैंने पूछना था, मैथ्स के अंदर यूजुअली इंटीग्रेशन की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी होती है ना, तो इसके अंदर तो वो इन्वॉल्व नहीं है ना, हमें इसके सिंपल अंदर वाली आएंगी। इस तरह से हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि हम लोग कहें जनाब जैसा वो वो पार्शियल, सम की होती। हाँ ठीक कि वो है। पार्शियल फंक्शन निकाल लें, इस तरह का हम नहीं करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, बस दुआ करना मेरा मूड उस दिन ऑफ ना हो जिस दिन मैंने एग्जाम बनाना है। अच्छा, guys, now this is a question for all of you. What is the probability that p is x, जो हमारा x is greater than or equal to 3 है। ठीक है, यहाँ मैं इक्वल टू लाना भूल गया हूँ। इट्स p x greater than or equal to 3। क्या आप में से कोई सॉल्व कर सकता है इसे?
तो बेसिकली आपको करना क्या है, हम इस पिक्चर को इसको करते हैं, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे हम लास्ट क्लास में कहा था, इट शुड बी एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 लेके आते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमें ये वाला एरिया चाहिए, वी नीड टू गेट दिस एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस एरिया को देखो, अगर इस एरिया पे हम खड़े होंगे, इस एरिया पे हम खड़े होंगे, तो इस एरिया पे हम करना क्या होगा, हमें 3 to 4 करना होगा, क्योंकि देखो हमारा फंक्शन सिर्फ 4 तक डिफाइंड है ना, उसके बाद तो हमारा फंक्शन 0 हो जाता है, हमारा जो हमारा एफ एक्स है वो 0 है। तो लिहाजा हम सिर्फ 3 से 4 तक सम ले सकते हैं, उसके बाद जितना भी सम होगा वो 0, उसके बाद सम 0 ही है, तो आप उसको अगर सम करते हुए तो 0 0 ऐड ही हो रहा होगा। तो दैट्स व्हाई वी आर ओनली टेकिंग फ्रॉम 3 to 4, ठीक है। तो आपने 3 से 4 आपने लिया, 1/60 एक्स क्यूब किया आपने, और डी एक्स करके आपने यहाँ पे इस आंसर को आपने निकाल लिया आपने, ठीक है। मुझे आप में से कोई आंसर बता दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ। 0.729। अगेन आई डोंट नो दी आंसर, तो लिहाजा आप लोगों को थोड़ा सा खुद इसमें मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे आंसर क्या, सो आई कैन नॉट कंफर्म एट दिस टाइम। अच्छा, इसमें अच्छा इसी फॉर्मूले को अगर हम गौर करें, अगर मैं कहता व्हाट इज, इसी फॉर्मूले को गौर करो, व्हाट इज पी एक्स इक्वल टू 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पी इज एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 3, तो क्या होता, ये जो हमारा इंटीग्रल है वो हमने 3 से 3 लेके जाना होता, और हमारा यहाँ पे 1/60 यहाँ पे होता, और एक्स क्यूब यहाँ पे होता। हमें पता है कि अगर लिमिट सेम हो जाए तो माइनस माइनस करके क्या होगा, इट शुड कम आउट टू बी 0, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 नहीं कर सकते कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, इट इज इनसिग्निफिकेंट एट दिस टाइम। अच्छा, another question for all of you. the graph is 1 to 0.5 बिल्कुल। हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही आप बिल्कुल सही कर सोच रहे हो। देखो हमारे पास जो है ना, उसने एक सवाल को उसने बड़ा एक ट्रिकली तरीके से उसने बताया हुआ है उसने। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। रिकॉर्डिंग आज शुरू हो गई, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा था, एनोटेशन खोल लिया मैंने। एनोटेशन भी आ गई, अच्छा जी। नाहिल ने बिल्कुल सही बात की है। आई गेस आदिल भी इस बात को पहले इसी बात पे ले आया था। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड अ वैल्यू, ठीक है, जिसमें हमारा मीडियन निकलता है, ठीक है। ये हमारा मीडियन फर्स्ट को यहाँ पर है, ठीक है। हमें मीडियन का हमें नहीं पता कि हमारा मीडियन कहाँ पर है, ठीक है। तो हमें मीडियन जो है ना, हमें मीडियन चाहिए हमें यहाँ पर। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास अब जो है ना, हमें अगर हम क्यूमुलेटिव की मैं बात करूँ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होगा कि नेगेटिव इन्फिनिटी से आपका m और आपका f(x) dx इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो m से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक f(x) d(x) इक्वल टू 1/2। आपके पास ये 2 केसेस हैं, आप इनमें से कोई से भी एक केसेस जो है आप अडॉप्ट कर सकते हो। अगेन हम लोग इसमें ना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये जो सेकंड कंडीशन थी हम उसके अंदर हम इसमें एंटर हुए हम लोग। सो यहाँ पर हमने इस तरह से हमने उसको हमने डिफाइन किया। अच्छा, अब f(x) dx इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस एरिया को हम लोग, हमें पता है हमारा फंक्शन डिफाइनिंग शुरू होती है 2 से 4 तक होती है, तो यहाँ या तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यानी जो लोअर केस हमारा 2 है, या फिर हमारा m से 4 तक आ जाएगा। तो वी कैन पिक आइदर ऑफ द कैटेगरी।
तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पर 2 से लेकर m तक और f of x dx इज इक्वल टू 1/2। हमारा फंक्शन में पता है, हमारा फंक्शन है 1/60। 1/60 मैं इधर लेके आ जाता हूँ, इधर हमारा आ जाएगा x³ था तो हमारा x4/4 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा m2 इक्वल टू 1/2। ऐसा ही है। इसको हमें सॉल्व करें अगर हम, तो ये हमारा सॉल्व करके m4 1/60 है, 1/60 को उधर ले जाते हैं तो हमारा बन जाएगा x m4/4 माइनस 2⁴/4 इज इक्वल टू 60, ये 30 बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको अब सॉल्व करना शुरू करूँगा अपने लिए, ठीक है, तो ये सॉल्व करते करते ही ये जो कंडीशन बनेगी सारी की सारी, ये बनेगा आपका, बन के आएगा m इज इक्वल टू 3.415। ठीक है, उसका वो 4³ वो आप बेसिकली कोई आपके सामने कुछ ऐसी टर्म बन के वो सामने आएगी, m इज इक्वल टू 4⁻⁴, यहाँ पे अंदर वैल्यू होगी अब वो पे 3.415 बन के आ जाएगी। Is that clear, guys? अच्छा यार, अगर ये तो हमने ये सवाल तो बड़े सिंपल पीडीएफ में, बड़े हम सिंपल ही हम इसको हम आगे हम जाते जा रहे हैं इसके ऊपर। व्हाट इफ यू वांट टू, मिनाइल आप हाथ पहले से करे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, अब अगला सवाल जो है वो जनाब ये है कि व्हाट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने ना पीडीएफ निकाले, अभी तक जितने भी हमने निकाले हमने सारे निकाले हैं पीडीएफ। वी हैवंट कंप्यूटेड द सीडीएफ एज ऑफ येट। अभी तक हमारे पास है कि ये जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, so the function that is being given to us वो ये था, f of x is equal to 1/60 x³ dx। अब हमें निकालना है कैपिटल F of x। हसन, सर ये क्यूमुलेटिव डेंसिटी होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्यूमुलेटिव डेंसिटी होगा, क्यूमुलेटिव CDF होगा। सॉरी यार, माय साइड, इसको मैं सेट कर लूंगा बाद में, इसको मैं अपने स्लाइड में सेट कर लेता हूँ। थैंक यू हसन। अच्छा, अब हमें निकालना है जनाब CDF। ठीक है, CDF करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ना f और x को ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं जस्ट टू क्लियर अवर कंफ्यूजन। ठीक है, CDF का मतलब क्या है? CDF का मतलब बेसिकली होता है f of x इज इक्वल टू p x इज कैपिटल x इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, यानी CDF होगा, एक CDF ये हो सकता है, यहाँ तक हम सम ले लें, एक सम हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा CDF जो है ना, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, जस्ट ये थोड़ी सी मैं सब्स्टिट्यूशन करने जाऊँ जस्ट टू मेक अवर लाइफ इजियर। f of x की जगह मैं f of t कर लेता हूँ। ठीक है, 1/60 और यहाँ पर t³, ठीक है, और dt। सिर्फ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए करूँ, फंक्शन वही है, मैंने x को t से कर लिया चेंज। अब हमें बेसिकली क्योंकि पहले हमारी ना लिमिट्स डिफाइन थी, पहले हमारी लिमिट जो थी इट वाज डिफाइंड टू अस, नाउ दिस इज नॉट बीइंग डिफाइंड टू अस, वी हैव टू डिफाइन दिस फॉर आवरसेल्फ। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फंक्शन जो है, हमारा फंक्शन है जनाब, हमें पता है हमें अपना फंक्शन लेके जाना है नेगेटिव इन्फिनिटी से x तक, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी मैक्सिमम लिमिट हमने x डिफाइन की हुई है। ठीक है, हमने अपनी मैक्सिमम लिमिट हमने x डिफाइन किया हुआ है। ये अगर हम करेंगे तो यहाँ हमारा बन जाएगा ft इज इक्वल टू ft dt। ठीक है, ये हमारा ft और dt यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा, ये हमारा f of x है।
अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ हमारा x आ जाएगा, और इसके साथ हमारा अंदर फंक्शन जो होगा वो बनेगा 1/60 t3 dt। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा फंक्शन बनेगा 1/60, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन बना t4/4, और साथ हमारा यहाँ पे आ गया हमारा 4, सॉरी x, यहाँ हमारा x आ जाएगा और यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, हम सही जा रहे हैं? अच्छा, 1/60, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x4 माइनस 2 ओवर, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो साथ x4/4 -4, ठीक है, और अगर हम इसकी थोड़ी सी और क्लासिफिकेशन कर लें एफ ऑफ एक्स की, तो वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वो बन के आएगी x4 माइनस 2^4, 2^4 यहाँ पे भी है, और साथ नीचे आ जाएगा 240। So this thing is f of x is equal to probability of x is less than or equal to x। ठीक है जी हसन, हसन आर यू देयर? सर मेरा कनेक्शन थोड़ा सही जी नहीं जी, कोई है, मसला अभी नहीं, मुझे कोई आपकी मसला आवाज नहीं। आई। अच्छा, मैं ये सब पूछ रहा था, ये केस कौन सा है जिसकी सोल्यूशन आप ये है हसन CDF। अभी हमने PDF, अभी हम सारे हमने अगर आप पिछले सवालों को देखो, जो मैंने पिछले सवाल भी आपको दिखाए हैं आपको हसन, इनमें क्या हो रहा है, लेट मी क्लियर माय ड्राइंग्स फॉर अ लिटिल व्हाइल। ठीक है, अगर मैं क्रॉस करूं और मैं पीछे की तरफ जाऊं, हसन ये जो हम यहाँ पे सवाल करेंगे प्रोबेबिलिटी शुड बी x इज ग्रेटर देन 3, या फिर हम सिंपल ये मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, CDF में क्या हो रहा है, यानी CDF इसका क्यूमुलेटिव सम कर रहा है उसका। ठीक है, तो हमने पहले हम PDF से प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे थे, अब हमने CDF निकाल लिया उसका। ठीक है, यानी दूसरे लफ्जों में अगर मैं बात करने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूं, हमारे पास ये फंक्शन तो ऑलरेडी गिवन था, एफ ऑफ एक्स तो गिवन था, है ना हसन? जी सर। दूसरा फंक्शन ये हमने कहा था, जिसने कहा था कि एफ ऑफ एक्स का जो सम है dx इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है क्या है, बेसिकली क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज है ना, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज अप टू लिमिट है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव लिमिट तक। ठीक है, अब CDF में क्या होता है, CDF में आप ऊपर भी लिमिट लगा देते हो, यानी आप कहते हो जना नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी जब बल्कि एक पॉइंट तक आप करोगे, तो आप अक्रॉस आप सम कर रहे हो अक्रॉस दोस वैल्यूज। ठीक है, तो हम CDF में हम क्या कह रहे हैं हसन, हम CDF में ना इसका फंक्शन निकालना चाह रहे हैं कि अच्छा यार, इस फंक्शन को, जो फंक्शन में अभी आपको निकाल के दिया था मैंने, 2^4 होना चाहिए, आई गेस आदिल, ये पहली वाली बात थी आदिल। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं अपने सवाल को दोबारा यहाँ पे दिखाऊं हसन, इस सवाल को f ऑफ x इज इक्वल टू x4 माइनस 2^4 ओवर 240। तो बेसिकली आपने ना अपने फंक्शन की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली है। ठीक है, यानी दिस फंक्शन विल मेक योर लाइफ इजियर इन अ वे कि अगर आप कहते हो जनाब कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 का मतलब बेसिकली है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे f4 का मतलब ये है, f4 पे क्या होगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस शुड कम आउट टू बी 1। देखो ये 1 आता है,
यस सर 1 आता है। 1 आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने CDF निकाल ली है। CDF यही था ना कि अगर आप उसको अक्रॉस ऑल वैल्यूज आप सम कर लो तो 1 होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने सिंपल किया ये, मैंने कहा यार आप लोग बजाय इसके कि आप ऊपर 4 लेके आओ और 2 यहाँ पे लेके आओ, मैंने इसका एक फंक्शन बनवा लिया आपसे, यहाँ पे x करवा लिया मैंने आपसे। उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे x होने की वजह से x raised to power 4 minus 2 raised to power 4 over 240, आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 पुट कर लो, 3.5 पुट कर लो, ठीक है, एंड यू कैन कंप्यूट द CDF। एक वैल्यू लाने का नुकसान ये था कि आपको बार बार फंक्शन कंप्यूट करना पड़ता। अब आपको इंटीग्रेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपने एक फंक्शन निकाल ली। हसन, इज दैट क्लियर? सर मैं इसको रिप्रेस कर रहा हूँ, या एक दफा फिर दोहरा रहा हूँ। मेरी बात अगर सही हुई तो आप इसको वैलिडेट करें। ठीक है। एक तो ये सूरत होगी cumulative density function की given we are computing CDF over the entire value of x or possible values of x, or maybe the domain of x over which the function is defined. तो वो तो आएगी 1 के बराबर। वो तो 1 के बराबर है। That too, that is cumulative density function over the entire domain of the function. Perfect, ये ठीक है। Right. दूसरा केस ये होगा कि when we are talking about cumulating the density over a subinterval of the domain. Yes, बिल्कुल, यानी अगर हम लोग 2 से 3 भी जाना चाहें, right, तो वो भी cumulative वो भी density है, but cumulative not है, for the entire, but not the entire but region. not for the, yes, there are 2 cases, एक entire region है, एक सब इंटरवल। हमने बिल्कुल सही पकड़ा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको फंक्शन आपके लिए आगे लिख भी दिए, ठीक है, ताकि अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो उसको सॉल्व कर लें। अच्छा जी, what is the probability that x is less than or equal to 2.7? Now we don't have to worry, इतना ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, since the function is being given to us, हमें बार बार उस पर नहीं जाने की जरूरत, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमें तो बार बार इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस वी नो कि हमारा x4 minus 2 raised to power 4 over 240 आता है, ठीक है, which is f of x, which is f of x। हम यहाँ पे f 2.7 कर देंगे, ठीक है, f 2.7 is equal to 2.7 raised to power 4 minus 2 raised to power 4 over 240। तो ये आपको CDF के निकालने का फायदा ये है कि CDF निकालने से आपको बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस वैल्यू पुट करते जाओ और आपका आंसर आपके सामने आता जाएगा। तो लिहाजा हमें जो एरिया निकालना है वो एरिया निकालना है ये 2.7, और हमारा एरिया निकलता है ये वाला। जी हसन। Sir, is there any way of putting this thing so that the computation procedure is reversed? Like I'm saying that ये 2.7 जो आपने डाला है ना, अब यहाँ पे मुराद ये ले रहे हैं कि less than or equal to 2.7। तो कोई ऐसी नोटेशन में या ऐसे तरीके से सवाल को फ्रेज तो नहीं किया जा सकता कि जिसमें इंडिकेट ये किया जाए कि इट इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2.7? अच्छा नहीं हसन, इसमें जो ये ग्रेटर देन वाला केस है वो हो सकता है, इक्वल टू वाला नहीं हो सकता, क्योंकि fx प्रोबेबिलिटी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू को जो है ना एक्यूमुलेट कर लेते हैं, कवर कर ले, ठीक है। अगर मैं ग्रेटर की बात कर रहा हूँ, हसन ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं सवाल आपको ये देता हूँ गाइस, लेकिन मैं कहता हूँ यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2.7, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? यही इंटीग्रल आपको मैं दे दूँ, कैसे निकालोगे, क्या करोगे आप लोग? राफे? सर जो अभी प्रोबेबिलिटी निकाली है वो निकाल के 1 से माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है,
तो लिहाजा आपने उसको 1 माइनस, थैंक यू जैद एज वेल, आप उसको नेगेटिव उसको माइनस कर दोगे। हसन ने जो सवाल पकड़ा था बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल 2.7 इसमें नहीं हो सकता, लेकिन x ग्रेटर देन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लेस देन इक्वल टू में ऑलरेडी वो एक्यूमुलेट हम कर रहे हैं इक्वल टू वाली सिनेरियो को, ठीक है। तो लिहाजा उसके अंदर वो ऑलरेडी वो सिनेरियो एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। अच्छा, अभी तक आप लोग देखो, आप लोगों ने किया क्या क्या इसके अंदर, कुछ चीज़ें हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आपने सबसे पहले निकाला, आपने फंक्शन 1/60, आपने इस कांस्टेंट को डिफाइन किया इंटीग्रल के थ्रू, सबसे पहले आप लोगों ने ये किया। सेकंड में आप लोगों ने क्या किया, सेकंड में आप लोगों ने वो निकालने के बाद आपने एक प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना सीखी। मैं अब अभी तक ओवरव्यू दे रहा हूँ जब तक हमने किया। तीसरा मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा कि आपके पास इंटीग्रल गिवन है, यानी आपके पास मीडियन वैल्यू गिवन है, एरिया की मीडियन वैल्यू गिवन है। try to find me the value of at that value in which area is equal to 0.5, ठीक है। यानी आपके पास इंटीग्रल का आंसर गिवन था, एरिया गिवन था, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। चौथा आप लोगों को जो मैंने अपने केस किया, हमने किया ये कि हम लोगों ने CDF निकाला, CDF फॉर x इज लेस देन इक्वल टू x को, ठीक है। तो हमने ये 4 सिनेरियोस हमने अपने इंटीग्रल्स को किए हैं। तो परसेंटाइल्स या प्रोबेबिलिटीज आपकी ऐसे निकलती हैं यूजिंग इंटीग्रल्स, ठीक है। अमार, वो सर मेरा इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर गया था। आपने हसन का सवाल क्या था, जवाब क्या दिया था, मैं मिस कर गया था। अच्छा, हसन का बेसिकली यार, हसन का सवाल बेसिकली ये था कि अगर हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.7 निकालना हो तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.7, ठीक है। तो उस केस में मैंने उसको कहा यह था कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाली तो जो है वो सिनेरियो हम इसके अंदर नहीं डाल सकते, हम सिर्फ ग्रेटर देन का डाल सकते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू को ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया जा चुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि लेस देन इक्वल टू हम ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके हुए हैं। अब अगर हमें ग्रेटर का निकालना हो कि x शुड बी ग्रेटर देन 2.7, तो वो हम कैसे करेंगे, हम ये 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस करके हम उस प्रोबेबिलिटी को हम निकाल लेंगे। तो ये वो बात है। आदिल, सर अगर यहाँ पे x लेस देन 2 पॉइंट मतलब x लेस देन 2.7 होता, लेस देन इक्वल टू 2.7 ना होता, तो उस केस में हम किस तरह कंप्यूट करते हैं? देखो x इज लेस देन 2.7 में जब अभी चीज़ को ना, मैं इस बात को मैं करते करते मेरे जहन में एक बात अभी आई है। देखो ये जो दो चीज़ें कि बनी किसके ऊपर हैं, ये मैं इसी चीज़ से भी आदिल भी आने वाला था। x इज लेस देन 2.7, ठीक है। और दूसरा केस जो है वो यहाँ बना है p x इज इक्वल टू 2.7, ऐसा ही आदिल। अब आदिल, ये अगर इस चीज़ को निकालने की कोशिश करोगे तो निकल आएगा x, जब पूरा इक्वल टू 2.7 के बारे में क्या बात हमने डिस्कस की थी हमने, दिस इज 0। एक पॉइंट जो है वो पॉइंट जो है वो इस पे इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो x एक उसमें राफे वाली चीज भी है, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो आप इस चीज पे भी उसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे हम इसे। अच्छा, अब आ जाते हैं मीन और वेरिएंस की तरफ। फंक्शन वही वाला है, फंक्शन मैंने रखा वही है, और मैं सोच रहा हूँ कि अब हम मीन और वेरिएंस की तरफ जाके हम चेक करें कि मीन और वेरिएंस पर क्या होता है, ठीक है। सो हमने चैट को बंद करना, चैट को लेनी चाहिए, अब पार्टिसिपेंट्स करेंगे। अच्छा गाइस, फंक्शन वही है, सब कुछ वही है। अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आई थिंक हमने ये सवाल को, हमने इसके फंक्शन को देखा था, लेकिन मैं दोबारा लिख दूँ। वेरिएंस अगर आपने एक्सपेक्टेशन निकाली ना, आपने एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन निकलती है जनाब ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ई ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स, और अगेन इट्स नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो इसमें निकालते हैं ऐसे कि आप एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हो, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव से आप लेके आते हो। आई गेस हमने ये फॉर्मूला तो हमें देखा था, लेकिन हमने इसको कवर नहीं किया था पिछली क्लासेस में। हसन, सर ये एक्सपेक्टेशन के इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। एक्सपेक्टेशन हसन जो हमने बात, एक्सपेक्टेशन है क्या?
जी सर। एक्सपेक्टेशन एवरेज है कि ऑन एवरेज आपकी वैल्यू क्या आएगी, मीन और वेरिएंस, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का जो सिनोनिमस वैल्यू मीन होती है, ठीक है, तो हम वी आर ट्राइंग टू कंप्यूट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसको हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं मैथमेटिक्स की टर्म्स में। अच्छा सर इसकी कुछ एक्सपेक्टेशन के ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज आगे जो है ना इकोनोमेट्रिक्स की डेरिवेशन में यूज होती हैं, if it is possible कि उन प्रॉपर्टीज के से गुजर सकें हम। मैं देखता हूँ उसको मेरे लेक्चर्स में अभी क्या चीज़ जा रही है, लेकिन आई डोंट थिंक एक्सपेक्टेशंस की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अगेन हमने कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस की है हमने कि यार चलो मैं सही इसमें मैं इसमें क्लास के बाद भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम इसमें इस तरह से स्टेप में जाएंगे। लेकिन वी आई शो यू हाउ टू कंप्यूट दिस एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेशंस बेसिकली द एवरेज, ऑन एवरेज आप वैल्यू क्या लेंगे। अभी तक हमने जितनी भी वैल्यूज ली हैं हमने अभी तक हमने क्या किया, हमने अभी तक किया ये है कि अभी तक हमने वैल्यूज हमने ले ली। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग पहले उसकी वैल्यूज लेते हैं, लेकिन मोस्टली वी आर कंसर्न अबाउट द मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने पिछले क्लास में आपको उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बताया था, मैंने आपको उसका मीन याद है, उसका वेरिएंस याद आती है, लेक्चर्स में देखना। यू कैन बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जो फार्मूला मैं आपके सामने कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का, ये इंटीग्रेशन वाला, आप इससे उसकी मीन और वेरिएंस पे निकाल सकते हो। आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, आप उस पर एक्सपेक्टेशन लगाओ एंड यू कैन कंप्यूट दी मीन एंड वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर ओन। जी सर वैसे जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो सिंपल हम अरिथमेटिक की एवरेज लेते हैं कि हम जो भी लेट्स से कि हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है इंटीजर्स से उसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स से हम डिवाइड कर देते हैं, तो नॉर्मली तो हम अरिथमेटिक एवरेज इस तरह से कैलकुलेट उसमें हम कर लेते हैं। और लेकिन इज इट सिनोनिमस टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन हम ले रहे हैं इट इज some particular value of x multiplied by the its probability, or you know, yes, x जो भी आएगा multiplied by the associated probability of that number, तो उसके सम को जो है वो हम ले रहे हैं as expectation. अभी So हसन मुझे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भी इस सवाल को भी सॉल्व करने दो, अभी आपको समझ आ जाएगी हम क्या करने जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक दफा सॉल्व करेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी हम क्या जा रहे हैं, ठीक है। right sir. अच्छा अब इस केस में भी हमारी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। इस केस में हमारी लिमिट्स होनी क्या चाहिए, व्हाट शुड बी अवर लिमिट्स, ठीक है। इट शुड बी फ्रॉम 2 to 4, ठीक है। 2 to 4 हमारा x यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ हमारा आ रहा है 1/60 x क्यूब dx, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक्सपेक्टेशन लेनी है ओवर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, वी वांट द एक्सपेक्टेशन। हम चाह रहे हैं जनाब हमारी एवरेज वैल्यू क्या आएगी इस सारे सिनेरियो में, ठीक है। वी वांट टू नो द एवरेज वैल्यू इन दिस सिनेरियो। यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो 2⁴ x 1/60 तो बाहर हमारा आ जाएगा, अंदर हमारा आ जाएगा x4 dx, ठीक है। 1/60 अंदर आ गया x5/5 4⁵2, ठीक है। तो हमने एक एंटायर रीजन की हमने एक एक्सपेक्टेशन लेनी है, वी नीड टू सी द एंटायर रीजन एक्सपेक्टेशंस। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/60 4⁵5 माइनस 2⁵5/2, और इसका आंसर क्या आएगा गाइस? सर ये ओवर 5 होगा। सॉरी 5, सॉरी। मिनाहिल करिए 3.52। कैन एनीवन कंफर्म मी दिस नंबर? सर ये नहीं है, वो गलती से मैंने प्लस कर दिया।
3.31 आ रहा है, वही जो 3.31 आदिल ने भेजा। 3.31 आदिल ने भेजा कि वो आदिल ने अगर राफे को भेजा सर। अच्छा तो यहाँ पे हमारी एवरेज जो है वो आ रही है 3.31। मैं थोड़ा सा इधर में शो करता हूँ। अच्छा गाइज अब इसका मतलब क्या है, अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तो ज़्यादा वैल्यूज बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन, आपको इस फंक्शन को देखकर क्या समझ आ रही है, ज़्यादा वैल्यूज की रेंज कहाँ पर है, ज़्यादा वैल्यूज की रेंज कहाँ पर है गाइज, आपके राइट साइड पर, ठीक है, और आपकी एक्सपेक्टेशन भी वहीं जा रही है। यानी फॉर एग्जांपल फर्ज करो अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ, क्लास का क्विज हुआ है, ठीक है, और क्लास में जो है वो 30 बच्चे हैं, ठीक है, और बल्कि 30 मार्क्स का क्विज हुआ है, 30 मार्क्स का क्विज हुआ है और 25 मीन आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, ऑन एवरेज किड्स आर परफॉर्म वेल, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही है कि ज़्यादा वैल्यूज हमारी 2 और 3 में नहीं आ रही, बल्कि ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं 3 से 4 में, ठीक है। दैट्स व्हाट इट मीन्स कि ज़्यादातर वैल्यूज, और हम देख भी रहे हैं कि हमारा फंक्शन एक्सपेक्टेशन निकालने के बाद हमारे एक तो एक्सपेक्टेशन भी कंफर्म की है इस बात को कि हमारे ज़्यादा वैल्यूज किस साइड पे आएंगी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज कहाँ पर आएंगी, और हमारी फिगर रिप्रेजेंटेशन भी ये बता रही है हमें, ठीक है। इस केस में तो हमारे साथ सीन ये था कि हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, जहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी वहाँ पर हमने सिंपल हमारा फॉर्मूला हमने यूज़ करके हमने उसे निकाल लिया था। लेकिन अगर हमें उसका भी फंक्शन हमें दिया गया हो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन ये है और आपने इसको निकालना है इस तरह से, तो उसमें भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं वैसे। बाय द वे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन वैसे क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी, जस्ट थिंक इन योर फ्री टाइम कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लेट मी नो। ठीक है 3.31, ठीक है, जो भी आप लोगों ने वैल्यू निकाली है। जी हसन। सर मैं अभी उसी पॉइंट पे हूँ, एक्सपेक्टेशन और एवरेज के अंदर ना। जी कंप्यूटेशन तो एलेबोरेट हो गई, आपने हाँ ऊपर भी ली, सवाल से वाजे हो गई। हाँ। मैं इसके डिफरेंस में फंसा हूँ कि अब यहाँ पे देखो मुझे कंफ्यूजन है देखो हसन फॉर अ कि टाइम, देखो हसन फॉर अ टाइम हाँ बिंग एवरेज और एक्सपेक्टेशन, जहाँ तक मैं जिस सिनेरियो में मैं अभी तक बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जहाँ तक जब अभी हम जी बात सर, कर रहे हैं उस केस में तो जो है अपना एक्सपेक्टेशन और एवरेज जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। फॉर अ टाइम बिंग जितना मैंने अब तक अपने इसको स्टडी किया मैंने, एक्सपेक्टेशन एंड एवरेज आर बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है, दे आर नॉट एनी वे डिफरेंट। एक और चीज़ जो मैं छोटा सा इसमें डिस्क्राइब करता हुआ चलूँ कि एवरेज में अक्सर आप लोग ना एक चीज़ हम बड़ा इजीली कर जाते हैं, और वो चीज़ ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ जनाब एवरेज निकालो, तो आप एवरेज में बताओ क्या करते हो, एवरेज में यू एज्यूम इक्वल वेट्स, ठीक है। एवरेज में आप कहते हो कि अगर मेरा 5, 10 और 15 वैल्यू आ रही है, तो आप कहोगे इनको आप प्लस कर दोगे और आप कह दोगे जनाब ये 3 है, और आप इस तरह से इसका आंसर निकाल लोगे। लेकिन वट इफ इट्स नॉट द केस, ठीक है, वट इफ इट्स नॉट द केस, ऐसे इन यानी इस नंबर के यानी कि जो थी वो इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट और इसका वेट उससे भी कम है, ठीक है। एवरेज में आप सिंपल उसका ना सम ले लेते हो। एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशन है इट्स अ बिगर कंसेप्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस में आप उसकी वेटेड प्रोबेबिलिटी लेते हो, तो बेसिकली एक होती है सिंपल एवरेज और एक होती है वेटेड एवरेज। आप इसमें मुझे फ़र्क बता सकते हो, आप इन दोनों में फ़र्क क्या है हसन, एवरेज और वेटेड एवरेज में? सर इसमें हम एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे ईच आउटकम के साथ। ये जो अब हसन इसी चीज़ को ना यहाँ पे देखो, ये हमारे ये है और यहाँ पे आपका एक एक्स है आपका, ठीक है, ये आपको ये उसका उसकी उसकी अपनी वैल्यू है, ठीक है, और ये उसका साथ जो आपका एक उसकी अपनी वैल्यू है और ये उसका साथ वेट है एफ ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन आपकी वेटेड एवरेज ही है। अगर फर्ज करो उस वेटेड एवरेज में सबके पॉइंट्स इक्वल हो जाएं, सबके इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं, तो वो क्या बन जाएगी, वो दोबारा आपकी एवरेज ही सिंपल बन जाएगी, अरिथमेटिक कन्वर्जेंस, जी सही, ठीक है। ये चीज है तो ये वो चीज़ है। आई होप सर। क्लैरिफिकेशन आ गई होगी हसन आपको, अदरवाइज वी कैन सेट यस सर, आफ्टर द यस क्लास। सर, नो सर इट्स वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन निकाली हमने, अब वेरिएंस
वेरिएंस के बारे में क्या करेंगे हम लोग? वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, लेकिन ये इतना ड्रॉना किस्म का फॉर्मूला है, अगर मैं इसको भी सॉल्व करना शुरू करूँ, मेरे पास वेरिएंस आ गई है। अब इसमें देखो ये जो ये म्यू है बेसिकली दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये तुम्हें पता है, ये हमें 3.31 आई है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है जनाब, एक तरफ आपका आ रहा है x.3.31 का स्क्वायर और साथ f ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा 1/60 x क्यूब dx। राफे किधर गया? राफे ने अपना कैमरा बंद कर दिया। राफे जी यार सर। मेरा मूड ऑफ हो गया यार, मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया है। यू गाइस नीड टू सॉल्व दिस थिंग। वेरिएंस निकालनी है तो इसको सॉल्व करो, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाओ, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग नाउ। मेरा मूड ऑफ कर दिया यार, बहुत बहुत सर खराब ये क्लास आ रही जुल्म है है। वैसे। अच्छा चलो यार, राफे, इससे पहले कि राफे परेशान हो, पूरी क्लास परेशान हो, आई थिंक वी नीड टू फाइंड सम अदर वे अराउंड इट। सो एज यू गाइस कैन सी कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कंप्यूट। ठीक है, अगर आप इसे कंप्यूट करने बैठे तो आप लोगों को सुबह भी हो सकती है ड्यूरिंग द क्विज, और यानी अगली सुबह हो सकती है। सुबह का हमारा क्विज होता है, अब मैं कहा अगली सुबह हो सकती है, इसको सॉल्व करते करते सॉल्व नहीं होगा। अब आपने सारी क्लास बोली कि सर आपने जुल्म किया हमारे साथ। तो यार इसका इसका एक जो है ना, इसका वर्क अराउंड है। इसका वर्क अराउंड ये है, तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन, आप जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस हम कहते हैं x माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इसको हम बेसिकली अपनी वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बेसिकली ये है कि आप e इंटू एक्स स्क्वायर करो, e इंटू एक्स स्क्वायर माइनस e इज टू पावर e एक्स की पावर स्क्वायर। दिस इज द इजियर वे, ये भी वेरिएंस ही है। ठीक है, अब ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम और ड्यू टू लिमिटेड स्कोप ऑफ दिस कोर्स, आई कैनॉट गो कि मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकूं कि ये इसके बराबर कैसे आ सकते हैं। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन दिस इज हाउ द वेरिएंस, इफ यू कंप्यूट दीज थिंग्स और ऐसे सब करोगे तो आपको वेरिएंस ही मिलेगी। ठीक है, आपको यू विल गेट वेरिएंस इन द एंड। अच्छा, अब इस वेरिएंस में अगर आपने वेरिएंस निकालनी है, आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है, आपके पास ऑलरेडी आप ये वैल्यू आप निकाल चुके हो। You only need to find this value. You only need to find this value, ex of scale. ठीक है, आपको ex स्क्वायर निकालना भी अब आता है। आपने ex कैसे निकाला था? आपने ex निकालने के लिए यहाँ पर आपने x इंटू एफ ऑफ एक्स किया था, आपने एफ ऑफ एक्स डी एक्स किया था आपने। ठीक है, अब आपने ex स्क्वायर निकालना है आपने। ठीक है, अब आपने निकालना है ex स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे जनाब, मैंने आप ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर अगर आप यहाँ करें तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे स्क्वायर निकाल लोगे। वो फंक्शन को दोबारा आप करोगे, पहले आप x इंटू 1/60 एक्स कर रहे थे। ठीक है, इस केस में एक्स स्क्वायर आ गया तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लोगे जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और आप उसके लिमिट्स कंप्यूट कर लोगे। अब आपके पास दो वैल्यूज हैं, 11.2 और 3.3, तो हमने ऑलरेडी पहले से निकाल लिया आपने, और आपके पास वेरिएंस आ जाएगी उसकी 0.266x। याद रखना ये वेरिएंस है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे कंप्यूट कर सकते हो? सर स्क्वायर रूट कर देंगे फाइनल इसका आंसर। स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपके पास वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स रिकैप अवर लेक्चर। ठीक है, हमने अब तक हमने क्या क्या हमने कर लिया। हमने इंटीग्रेशन, आज इंटीग्रेशन बहुत मेन थीम रहा है हमारा पूरा लेक्चर का, एंड आई थॉट कि थोड़ा इंटीग्रेशन से बाहर भी निकलें, नहीं तो वरना आपको लगेगा कि हम लोग स्टैट से पूरे कैलकुलस में शिफ्ट हो गए। सो लेट्स मूव आउट अ लिटिल बिट फ्रॉम इंटीग्रेशन। अब तक हमने इंटीग्रेशन के थ्रू हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड की हैं, हमने CDF फाइंड किया, हमने ये 2 काम किए। तीसरा काम हमने किया ये है कि हमने इसके अंदर हमने मीन फाइंड किया, फिर हमने चौथा हमने वेरिएंस लिया इसके अंदर से। तो हमने कुछ चीज़ें अभी तक हमने इसके अंदर से इंटीग्रेशन के थ्रू हमने की है। Now I'm moving forward to some other concept, which is we will try to apply the binomial, we will try to apply the normal approximation on the binomial distribution. ठीक है, in other words we will try to find
in other words, we will try to find the probabilities of binomial distributions using the normal functions जो standardization करके हम करते थे. तो हम उससे हम देखेंगे कि हम उसे कैसे solve कर सकते हैं उसे. जी हसन. सर जिस तरह आपने cumulative density function की interpretation बताई कि it's over an interval, जो probability function के it's sum, it is basically a sum. ये जो आप variance निकाल रहे हैं, इसकी थोड़ी सी जरा interpretation यार दें कि how are we ये going मैंने to पहले भी क्लास में बताई थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मैं इसका शॉर्ट ओवरव्यू में जल्दी से मैं दे दूं. वेरिएंस ये होती है, ठीक है. जी सर. अब अगर फर्ज करो आपके पास फर्ज करो हसन, आपके पास एक ये है, आपके पास एक ये वाली चीज़ है, ठीक है. एक आपके पास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ऐसे है, सॉरी, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ऐसे है. वेरिएंस बताता है कि नंबर डिस्पर्स कितने हुए हैं, ठीक है. इस केस में नंबर्स के सर मैं अपनी बात थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं. ये यहाँ तक क्लियर है, ये वाली बात आपने पहले भी डिस्कस की है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ना अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएंस. लेकिन यहाँ पे मैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंटीग्रल को यूज कर रहे हैं ना, एक ये ई एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर की टर्म है. इसकी थोड़ी सी सेंस मेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लें कि ये इस हाउ शुड वी थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ यार probability और आई थिंक मैं इसको क्लास के बाद आपको साथ मैं इसको आपसे सोर्सेस शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर यू कैन, क्योंकि मेरे पास ड्यू टू बस टाइम इतना नहीं है कि मैं इस फॉर्मूले में टाइम लगा सकूँ. आई विल शेयर सम नोट्स ऑन यू ऑन दिस थिंग कि आप इस फॉर्मूले से वेरिएंस पे जा कैसे हो, ठीक है. राइट. अच्छा, सो गाइज अभी तक ना हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर मुझे कोई रिमाइंड करवा सके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, व्हाट वाज आवर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसमें क्या चेक कर रहे थे हम लोग. चलो थोड़ा सा इजी करने के लिए एलेबोरेट कर सकते हो आप इन दोनों चीज़ों को, क्या हो रहा है इन दोनों में. इससे पहले कि हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करें, इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, ठीक है. क्या इसमें ये क्या है, यानी ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है ऊपर, ये वाली लाइन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ और ये चीज़, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन. राफे. सर के 40 ऑब्जर्वेशंस हैं और हर किसी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है. 40 ऑब्जर्वेशंस हैं और हर की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बट प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की 0.5 है. हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आने की. राफे करीब है लेकिन ठीक नहीं है, राफे बहुत करीब है लेकिन ठीक नहीं है. हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में सोचना है. नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, एक पॉजिटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नॉट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब ये है n जो है, n इज अवर नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि हमने कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए हैं. और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन दिस केस इज 0.5. हर ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, कि अगर आप कोई एक ट्रायल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप 40 टाइम्स उसको रिपीट करते हो, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एवरी ट्रायल इज 0.5. दैट्स व्हाट इट मींस. यहाँ भी n 40 है लेकिन प्रोबेबिलिटी 0.33 है. नाउ इफ यू लुक एट दीज टू ग्राफ्स, अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखो, विच वन लुक्स मोर नॉर्मल टू यू. आप किस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो. पहले वाला ऐसा ही है. ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਦਾਂ. अच्छा, तो हम उसके इस तरह से हम उस पर हम कर सकते हैं.
सो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पोज करें, अगर इफ वी इम्पोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख सकते हो कि आप लोग जितने जो आप लोग कैसे करते हो उसमें आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ऐसे आप लोगों ने एज्यूम किया। एक केस में आप देख सकते हो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन आ गई है, दूसरे के अंदर आप उसे फिट करना चाह रहे हो लेकिन इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर यू। ठीक है, स्टेटा के अंदर भी ये स्टेटा का एक्सपेरिमेंट है। स्टेटा में हिस्टोग्राम बनाना, यू नो हाउ टू मेक हिस्टोग्राम। आपने स्टेटा की हेल्प में जाना है हिस्टोग्राम की, और आपने देखना है कि इफ़ यू वांट टू इम्पोज द नॉर्मल वाली ये लाइन अगर लाना चाह रहे हो तो हाउ कैन यू डू दैट। ठीक है, तो आप उसमें से कैसे लेके आ सकते हो। तो उसमें ये चीज़ जो है वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, रूल ऑफ थंब क्या है यार, इसका रूल ऑफ थंब है, ठीक है, कि आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन आप तभी कर सकते हो जब एक दो चीज़ें हों। एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड दे शुड बी लार्ज, ठीक है, and the probability should be at least should be approaching to 0.5, ठीक है, यानी बैलेंस टू the probability there's a balanced probability of failure and success, नॉट एग्जैक्टली लेकिन थोड़ी सी उसके करीब करीब होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी दो चीज़ें होंगी ना आपकी, एक तो एन पी शुड बी ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और एन माइनस वन माइनस पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। उस केस में आप इस केस को आप यहाँ पे आप इस केस में इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, मुझे ये बताओ कि मीन और वेरिएंस क्या थी अपनी उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। सोचा होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चली गई है, फिर सारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वही चीज़ें सामने फिर मत्थे आके लग गई हैं, अच्छा भला निकले तो फिर बाइनोमियल वापस आ गए हैं। ठीक है, बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की? कैन एनीवन टेक अ शॉट? नो प्रॉब्लम उस्मान, नो प्रॉब्लम, मुझे भी कोई मसला नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। उस्मान ठीक है, अभी लेकिन इट्स एन पी, नो प्रॉब्लम सर, कोई मसला नहीं है, अभी आपको बताता हूँ। तो वो यही चीज़ है जिसने की है। तो बेसिकली एन पी इज द मीन, ठीक है, एंड वेरिएंस जो होगी वेरिएंस होगी एन पी इंटू वन माइनस पी, जो उसने क्यू लिखी है बेसिकली क्यू इसका वन माइनस पी है। तो बेसिकली एन पी इज द मीन एंड वेरिएंस इज दिस। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर हम उस पर हम अब आते हैं। ठीक है, तो let x be a binomial random variable with n is equal to 75 and p is equal to 0.6। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सवाल को ना सॉल्व करते हैं। तो इसका मीन और वेरिएंस तो निकालो, इसका मीन और वेरिएंस क्या निकलेगा? मीन क्या है इसका? सेवेंटी फाइव इंटू 0.6, 75 इंटू 0.6। ठीक है, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर क्या निकलेगा मीन का? फोर्टी फाइव। थैंक यू डॉक्टर। और वेरिएंस क्या है जनाब? What should be your variance? एटीन आती है वेरिएंस, ये राफी वेरिएंस है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी इसकी? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी इसकी? तो स्क्वायर कर देंगे उसे। नहीं, स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका। 3 स्क्वायर रूट 2 सर, क्या आ जाएगी? आ 3 स्क्वायर रूट 2। 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, जरा मुझे यार नंबर भी बता दो, डेसिमल में बता दो, डेसिमल में नंबर क्या बनेगा? ये 3 इंटू 1.21 बनता है, क्या बनता है? सर 4.22। 4.22।
अच्छा, मैं चेक कर लूँ, मुझे ना ये जो है अपना आदिल की मुझे हंसी ना बड़ी है तनाव सी लग रही है, मालूम है हम गलत नंबर लेके आगे चल रहे हो और आदिल चाह सर भी नहीं रहा। 2.4 है। अच्छा जी, 4.24। हाँ देखा, ये 4.22 नहीं था, एक इसमें इसने गलत आखिरी डिजिट पे इसने हमारे साथ हेरा फेरी की है इसने। अच्छा, नाउ अगला सवाल है व्हाट इज पी एक्स इज ग्रेटर देन 52। ठीक है यार, इसका आदिल को एक सवाल याद होगा, आदिल एक सवाल मैं दोबारा आपके सर वापस लेके आ रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने एक सवाल करवाया था क्लास के अंदर, एक रेयर पेशेंट डिजीजेस का, जिसमें हमने कहा था कि एटलीस्ट 10 पीपल सर्वाइव, और हमने फिर उसका हमने टेबल में जाके उसकी वैल्यू ढूंढी थी हमने कहा था जनाब ये वैल्यू हमारी निकलती है, अल्लाह भला करे आपका, और हमने वैल्यू निकाल के हम लेके आ गए थे, और हमने कहा और मैंने उसको हमने सम किया था, हमने उसको 11 12 13 14 15 को, और वो हमने सम करके निकाली थी हमने। अब एक तो तरीका यही है कि आप करो ये कि एक्स ग्रेटर देन 52 पकड़ो और जाके ढूंढना शुरू कर दो उसके अंदर 52 से 75 सम करो आप वो बाइनोमियल टेबल में जाके, और आप वो मुझे आंसर निकाल के दो। सेकंड केस इज मच मोर ईजियर कि आप इसके नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर लो। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करते हैं गाइस, हम करेंगे पी एक्स माइनस म्यू ओवर वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन, इट शुड बी ग्रेटर देन 52। 52 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 52 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 52 माइनस 52 माइनस 52 माइनस, यहाँ पे क्या होगा जनाब, यहाँ पे हमारा मीन है हमारा 45। ठीक है, और 45 का मीन निकालने के बाद हमारी नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन जो आती है वो आती है 4.24। ठीक है, प्रोबेबिलिटी z आ गया आपका, z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये नंबर जो आप निकालोगे तो ये निकलेगा 52 माइनस 45, 52 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 4.24, 1.65। आपको तो ये प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल कर रहे हैं ना? हाँ अब आपने इसको नॉर्मल कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपने निकालनी है, ये वैल्यू आपने निकालनी है, और आपके पास ये वैल्यू जो आप निकालोगे इस वैल्यू से आपके पास आपकी निकलेगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो आप बाइनोमियल में निकालना चाह रहे थे वो आपने नॉर्मल में निकाल के आप लोगों ने कर लिया। मेरे पास यू आर फ्री टू, अच्छा इसमें ना मैं कुछ चीज़ें मैं भी अभी लेके आने वाला हूँ जिससे आप जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करोगे ना, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से बहुत दूर है। ठीक है, दिस इज नॉट अ राइट प्रोबेबिलिटी जो अभी आप कंप्यूट करने जा रही हो। वाई बिकॉज ऑफ फैक्ट के ना अभी मैं इसमें आपको कोई नई चीज़ लेके आऊँगा तो अभी आप उसमें आपको समझ आएगा कि ये भी ठीक क्यों नहीं निकलेगी, हमें इसमें एक करेक्शन लगाने की जरूरत है, वी नीड टू अप्लाई सम करेक्शन टू इट। ठीक है, तो नाउ लेट्स लुक फॉर दैट करेक्शन। जनाब ये अभी हमने जो किया ना 52 ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 52, वो आपका बनता ही है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे निकली है आपकी, और आपका उसमें 52 आपका यहाँ पे 52 54 आपके नंबर ऐसे यहाँ पे हाईलाइट मैंने किए हैं जो हम जिसकी हम प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाह रहे हैं। इस पे अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप ओवरले करो तो क्या हो रहा है, वो जो मैंने वहाँ पे नंबर निकाला है अगर मैं उस नंबर को यहाँ पे लेके आऊँ, मैं उसको यहाँ पे इसको कंप्यूट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जनाब, आधी मेरी प्रोबेबिलिटी निकल गई है, 52 पूरा नहीं आ रहा, 52 पूरा नहीं आया, 52.5 आया। इसको मैं थोड़ा सा और करीब से दिखाता हूँ आपको, आप ये देखो यहाँ पर आपका ये नंबर जो है वो आपका निकल गया। ठीक है, आपका नंबर यहाँ से वो जा चुका है। अगर आपको ये चीज़ भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि देखो ये है कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में ना 52 नहीं होता, वो 52.000000 करके वो नंबर निकलता है। ठीक है, कंटिन्यूस में हमने बात की ना कि 3 से 4 की अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 to 4 है, तो 3 to 4 का मतलब ये नहीं कि 3.1 3.2 3.3 3.4 नहीं, उसका मतलब है 3.00001 3.0002। ठीक है, इस तरह से नंबर हम शुरू करते हैं। अब अगर मैं 52 पे ओवरले करता हूँ ना अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उससे होता है बेसिकली क्या है कि जब 52 पे आया तो 52.5 पे वो रुक गया, वो मुझे पूरा 52 नहीं दे रहा। टू अकाउंट फॉर ऑल 52 ना, कि मैं 52 की पूरी वैल्यू को लेके आ सकूँ, मुझे इस पर एक करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 0.5 का 0.5 डालना पड़ेगा। अगर मैं 0.5 डाल देता हूँ, अगर मैं 52 माइनस 0.5 करूँगा तो निकलेगा 51.5। अब 51.5 पे ये आपकी वैल्यू पूरी हो जाएगी। जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो अब यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इसकी ऐसे स्टार्ट होती है,
आपका एक 46, 47, 48, 49, ठीक है। अगर मुझे ये वाला नंबर लेके आना है, अगर मुझे ये वाला नंबर लेके आना है, तो मेरे पास ये 51.5 मुझे करना होगा। मेरा 52 स्टार्ट होता है यहाँ से, माई 52 स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। अगर मुझे ये वाला भी नंबर चाहिए जो 52 की रेंज में जो आ रहा है, क्योंकि हमारा जब हमने कंटिन्यू बाइनोमियल में और कंटिन्यूस में फ़र्क यही है, बाइनोमियल ने इसको अज्यूम किया था कि ये 52 है पूरा का पूरा, कंटिन्यूस में जब हम गए तो कंटिन्यूस इसको 52 नहीं, इसको बल्कि 51.5 अज्यूम करें, तो वी नीड टू अकाउंट फॉर दिस एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है, 51.5, तब जाके हमारा नंबर जो है ये पूरा होगा, ठीक है। अब अगर ये तो था p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 52, अभी हमने जो था ये हमने किया है p x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 52। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे p x इज ग्रेटर देन 52 चाहिए, ठीक है, p x इज ग्रेटर देन मुझे 52 चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर 52 से मुझे ऊपर चाहिए था तो मैंने अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको 53 से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे 52 नहीं चाहिए था, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 52 से मैंने स्टार्ट करना था, मुझे 53 से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन यू कैन सी द प्रॉब्लम अगेन। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर जनाब, 52 को जब हमने शामिल किया तो 52 को शामिल करने से हमारा वो आगे अगला फिर गायब हो गया, तो हमें वी नीड टू स्टार्ट विद 52.5, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वी नीड टू एडजस्ट फॉर 0.5। अगर 52 हमें ग्रेटर देन 52.5 चाहिए, ग्रेटर देन 52 चाहिए था, ठीक है, तो ग्रेटर देन 52 का मतलब है 52.5 को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, वो 53 नहीं से शुरू करना, क्योंकि कंटिन्यूस के अंदर 52.5 से हमें इसको लाना पड़ेगा जस्ट टू अप्लाई फॉर करेक्शन इन दैट केस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ p शुड बी लेस देन और इक्वल टू 52, p अभी हमने x इज ग्रेटर देन 52 किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 52 किया था, अब हमें x इज लेस देन इक्वल टू 52 अगर हमें करना हो तो हमें वहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ 52.5 को हमें लाना होगा, ठीक है। वी नीड टू एंड एट 52.5 इंस्टेड ऑफ 52, यहाँ पे गलती होगी, इसको 52 लिखना था मैंने, ठीक है। तो ये 0.5 का आपको करेक्शन फैक्टर लगाना है, यू नीड टू अप्लाई फॉर द करेक्शन फैक्टर। अगला सवाल पे अब आप मुझे बताओ, इफ x इज ग्रेटर देन, इफ x इज लेस देन 52, इफ x इज लेस देन 52, अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आपको क्या, आप फैक्टर क्या अप्लाई करोगे, और शुड बी द करेक्शन फैक्टर ओवर हियर। नहीं राफे 51.5, सॉरी आदम 51.5, उस केस में 52.5 था कि x इज ग्रेटर देन लेस देन 52 था, इसमें जो है हमारा x जो है वो यहाँ पे 51.5 इस तरह से हमने इसमें बिल्डअप किया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना यहाँ पे आपके लोगों के लिए इसको थोड़ा सा इस केस को नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन और डिस्क्रीट अप्रॉक्सीमेशन को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उन सारी चीज़ों को मैंने करेक्शन फैक्टर को मैंने साथ लगाया है कि इफ x इज ग्रेटर देन 52, अगर आप डिस्क्रीट में आप बात ये करते हैं, दिस इज योर डिसाइड प्रोबेबिलिटी, सो नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के लिए यू विल हैव टू अकाउंट इंक्लूड 51.5 एज वेल, यानी उससे पहले जो वैल्यूज आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। इफ x इज ग्रेटर देन 52, फिर आपको 52.5 लेके आना पड़ेगा। इफ x इज लेस देन इक्वल टू 52, ठीक है, तो आपको 52.5 लाना होगा। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 52, तो आपको 51.5 करना पड़ेगा। यानी जब आप जी स्कोर कंप्यूट कर रहे हो तो जी स्कोर में आप 52 लेके नहीं आओगे, जी स्कोर में आप 52 लेके नहीं आओगे, ठीक है जी। हमारी ये LMS की ये स्लाइड्स ही हैं, तो ये स्लाइड्स उसमें डलेंगी, ये स्लाइड्स उस पर डलेंगे, तो डो नॉट वरी अबाउट दिस थिंग कि हम इस पर डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो हम यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेके आएंगे। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी दिखाऊं कि प्रोबेबिलिटीज इंप्रूव होती कैसे हैं, तो यू विल सी देयर अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दोस। अब देखो, आपको याद होगा अभी x इज ग्रेटर देन 52 अगर हम कंप्यूट करें तो हम दोनों में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, हम वहाँ पर जनाब बड़े सिंपली ना हम वहाँ पर 52 माइनस कर देते हैं, ग्रेटर देन 52 पे हमारा नंबर वही आना था और सिंपल वाले में भी यही आना था, ठीक है। लेकिन जब हमने करेक्शन अप्लाई की, जब हमने करेक्शन की हमने, तो करेक्शन में क्या हुआ, आपका नंबर 0.0628 आ गया। ये ट्राई करना है, ये आप लोगों ने सवाल सॉल्व करना है खुद अपने लिए, आप लोग देखना कि आपकी विदाउट करेक्शन केस में आपका नंबर यहाँ पे ये बन रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोबेबिलिटी को अगर आप कंप्यूट करो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी के साथ,
अगर आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो और वहां पे आप कंप्यूट करते हो तो ये नंबर बनता है 0.0611। ठीक है, और और अगर आप सिंपल विद करेक्शन के साथ अगर आप देखो तो पहले आपकी 0.0495 आई थी, आप प्रोबेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे इस केस में, वो आपकी बन रही थी 0.0385। और अगर आप बायनोमियल में जाके देखो तो बायनोमियल में वो बनती है 0.0367। ठीक है, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटीज ये करेक्शन फैक्टर लगाने से हम काफ़ी करीब चले जाते हैं उस केस में, वी गेट रियली क्लोज टू दैट।